Hello everyone. Today I am going to discuss you the different MCQ questions on the topic of leadership. So my first questions on the leadership is the relationship in which one person influences others to work together willingly on related task is known as. I'm repeating the questions again. The relationship in which one person influence others to work together willingly on related task is known as number one, number A, team, option B, group, option C, leadership, and option D, subordinateship. So, what is the answer of that particular question? I'm giving you 5 seconds. So answer for these questions is, so here the questions is the person is influencing the other, means the leadership. The answer will be C. C is the answer. The leader, who are the leader? Our leadership is the process through which we are influencing or motivating the other person to do or accomplish the organizational goal. Okay, so what will be the answer of first question is C, leadership. Answer is C, leadership. Now the second question says, a management theory stating that the different situation call for different leadership style, and that essentially there is no one best way to lead is. I'm repeating the question. A management theory stating that the different situation call for the different leadership styles, and that essentially there is no one best way to lead is. The options are A, charismatic leadership or charisma leadership leader, B, autocratic leader, C, situational leader, and D, none of the above. I'm giving you the 5 seconds. So in that particular questions, you are just seeing that the different situation call for the different leadership style. Here they are actually taking care of the situation part. So what will be the answer? Once you are seeing that that will be the situation basis, the answer will be C, the situation leader. If the situation leader option is not given in your question, if it is given in contingency leader, then the answer would be contingency leader. If the situational leader is given in the answer sheet, you have to give the answer is called C, situational leader. What is the answer? Is C, situational leader, because he is acting as per the situation. Okay, third question. So which of the following statements about leadership is false? ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो लीडरशिप के अकॉर्डिंग फॉल्स है? तो फर्स्ट है, नॉट एवरी लीडर इज ए मैनेजर. When people operate, second है ऑप्शन बी है, when people operates as a leader their role is always clearly established and defined. Option C है, leadership does not necessarily take place within a hierarchical structure of an organization, and D, all of the above. सो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन सा लीडरशिप स्टेटमेंट फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट लीडरशिप इज फॉल, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, नॉट एवरी लीडर इज ए मैनेजर. ऑप्शन सही है कि ईच मैनेजर तो लीडर नहीं बन सकते. वेरी गुड. सेकंड क्या है ऑप्शन, व्हेन पीपल ऑपरेट एज ए लीडर देयर रोल इज ऑलवेज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड एंड डिफाइंड. ये क्या ठीक है कि जब लीडर के अंडर पे रहता है कि उसको सब कुछ बता दिया जाता है, जितना भी उसका रोल है, ड्यूटीज है, सारा कुछ बता दिया जाता है. सी है, लीडरशिप डज नॉट नेसेसरी टेक प्लेस विद इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. लीडरशिप डज नॉट नेसेसरीली टेक प्लेस विद इन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सी क्या सही है? एंड डी है ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर क्या होने वाला है? आंसर क्या होगा? बी है इसका आंसर. तो आंसर विल बी बी. व्हेन पीपल ऑपरेट्स एज ए लीडर्स, when people operate as leaders their role always clearly established and defined. हर टाइम हर चीज established नहीं होता है. ठीक है, यही एक स्टेटमेंट
फॉल्स है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज approaches to the study of leadership which emphasizes the personality of the leader are termed। उसको क्या बोलते हैं? लीडरशिप का ऐसा स्टाइल है जिसमें पर्सनालिटी ऑफ लीडर का पर्सनालिटी को हम लोग देखते हैं, तो उस टाइप का लीडरशिप थ्योरीज को क्या बोलते हैं? कौन सा थ्योरीज आएंगे? ऑप्शन ए है कंटिजेंसी थ्योरीज, इंस्पिरेशनल थ्योरीज, ट्रेट थ्योरीज एंड ग्रुप थ्योरीज। इसमें कौन सा थ्योरी है? क्वेश्चन है अप्रोचेस टू द स्टडी of leadership which emphasizes the personality of the leader are termed। क्या है इसका? एंड ऑप्शन ए है कंटिजेंसी, बी है इंस्पिरेशन, सी है ट्रेड एंड डी है ग्रुप। जब हम लोग किसी भी इसका हम समराइज कर देते हैं थोड़ा, देख लो, जब भी किसी पर्सनालिटी, किसी का ट्रेट के बारे में बात चले ना, पर्सनालिटी चाहे स्किल्स हो, उसका एटीट्यूड हो, क्या है उसका, ठीक, बॉडी लैंग्वेज क्या है, इस सब के बारे में जब भी बात हो तो किसके अंडर पे आएगा? वो आएगा ट्रेट थ्योरीज के अंदर पे, ट्रेट थ्योरीज ऑफ द लीडरशिप। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। सी क्या आंसर इसका? ट्रेट थ्योरीज। ठीक है, आंसर इज सी। नेक्स्ट है one contingency model। next question है one contingency model of leadership is the path goal theory। this suggests that an individual's motivation is dependent on a their effective performance, b the necessary direction, guidance, training and support being provided, whether path goal relation are clarified, and d the expectation that increased effort to achieve an improved level of performance will be successful, or none of the above। So path goal theory I have discussed in my earlier classes for my BBA students, so you can give the answer। so what will be the answer? answer is D। तो क्या होगा इसमें? expectation that increased effort to achieve an improved level of performance will be successful। तो आंसर क्या होगा इसका? D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म एम्प्लॉय सेंटर्ड एंड प्रोडक्शन सेंटर्ड टू डिस्क्राइब लीडर बिहेवियर वेर यूज्ड बाय, कौन है? ए ऑप्शन है ब्लैक एंड मैकन्स, बी है मैकग्रेगर, सी है फिडलर एंड डी है लाइकट। सो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली होगा लाइकट। ओके, यदि मैनेजरियल ग्रिड पूछ देता है, कि मैनेजरियल ग्रिड में भी क्या होता है ना, पीपल सेंटर्ड एंड प्रोडक्शन सेंटर्ड होता है, तो उसमें क्या होता है? ब्लैक एंड माउंटेन होता है उसका आंसर, यदि मैनेजरियल ग्रिड पूछ दिया इंस्टेड ऑफ ये वाला। यहाँ पर तो लिख दिया है द टर्म डिस्क्राइब एम्प्लॉय सेंटर एंड प्रोडक्शन सेंटर टू लीडर बिहेवियर वेर यूज्ड बाय, किसने यूज किया था? ये लाइकट ने। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Leadership today is increasingly associated with the concept of, किस concept के ऊपर associated है? कंट्रोल, ए है कंट्रोल, बी है स्ट्रेटेजी, सी है गेटिंग अदर्स टू फॉलो एंड डी है कमांड। वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम इजी से जवाब आ जाना चाहिए। ये क्या है? इसका आंसर होगा सी, गेटिंग अदर्स टू फॉलो। एक लीडर कब लीडर बनेगा? जब उसके साथ में फॉलोअर्स हो, तब तो वो लीडर बनेगा। सिर्फ कंट्रोल या स्ट्रेटेजी या कमांड होने से लीडर नहीं बनता है, उसके अंडर पे फॉलोअर्स होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट टेक्स अकाउंट ऑफ अदर्स व्यूज, ओपिनियंस एंड आइडियाज। ऑप्शन ए है लेजर, बी है पीपल ओरिएंटेड, सी है डेमोक्रेटिक एंड डी है ऑटोक्रेटिक। यहां पर सिर्फ अच्छा से पढ़ना है क्या बता रहा है। What do you call a style of leadership that takes account of others' view, opinion and ideas? Very confusing type। ये confusing question है थोड़ा। इसमें इसका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, डेमोक्रेटिक। क्यों डेमोक्रेटिक होगा इसका हम बता देते हैं। डेमोक्रेटिक होने का कारण है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अदर का ओपिनियंस, व्यू एंड आइडियाज ले रहा है मैनेजमेंट, बट डिसीजन मेकिंग पावर इज अंडर द टॉप मैनेजमेंट। तो लेजर तो होगा नहीं भाई, क्योंकि लेजर में सारा कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग पावर किसके अंडर पे रहता है? वो सारे जितने भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय सबके अंडर पे रहता है।
पीपल ओरिएंटेड भी नहीं होगा, ऑटोक्रेटिक में तो टॉप मैनेजमेंट के अंडर में रहता है, वहां से कोई सजेशन ही नहीं लिया जाता है। तो सी क्या होगा, इसका आंसर होगा डेमोक्रेटिक। ओके, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट है, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजेक्शनल लीडर्स? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांजेक्शन लीडर्स का? फर्स्ट वन, ए क्या है, गाइडिंग, मेंटरिंग एंड मोटिवेटिंग। बी है गाइडिंग, कमांडिंग एंड मोटिवेटिंग। गाइडिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग। एंड लास्ट वन डी है गाइडिंग, मेंटरिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग। एक ट्रांजेक्शन लीडर का क्या की कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? तो इसको यदि हम लोग वर्ड में आउट कर दें, देखिए कमांडिंग करेंगे तो लीडर यदि कमांड वाला हो ना तो लीडर काम नहीं कर सकता, वो इंप्लॉइज नहीं काम करेंगे, कमांड नहीं होना चाहिए, वहां पर इन्फ्लुएंस करना होगा आपको काम करने के लिए, तो उसको हटा दिए। बी वाला जो है कमांडिंग है उसको हटा दिए। डेमोन्स्ट्रेशन, यदि ज्यादा कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करने चले गए ना तो इंप्लॉय फ्लोवर ऐसे ही हटा देगा आपको, तो डेमोन्स्ट्रेशन चला गया, तो क्या होगा आंसर? एक ही है, ए जो है सबसे अच्छा है। देखो ए का आंसर क्या है, गाइडिंग भी करता है, मेंटर भी करता है, मोटिवेटिंग भी करता है। यहाँ पर किसी भी टाइप का कोर्सन पावर, थ्रेटनिंग पावर, कमांडिंग वगैरह यूज नहीं कर रहा है, तो ट्रांजेक्शनल लीडरशिप का क्या है, ए होगा आंसर। इसका क्या है, गाइडिंग, मेंटरिंग एंड मोटिवेटिंग, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म फॉर पावर derived from the status or position in an organization? क्या होगा इसका? ये रेफरेंट पावर होगा, ए। बी होगा एक्सपर्ट, सी रिवार्ड एंड डी है लेजिटिमेट पावर। क्या पावर होगा? पावर डिराइव्ड, यहाँ पर देखो, व्हाट इज द टर्म फॉर पावर डिराइव्ड फ्रॉम स्टेटस और पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन? इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। क्या होगा, डी, लेजिटिमेट पावर। जब कोई आपको ऑर्गेनाइजेशन कोई पावर दे रहा है ना, तो वो क्या पावर होता है ना, लेजिटिमेट पावर होता है, वो आपको ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिल रहा है, एक एक्ट और लीगल वे पे मिल रहा है आपको पावर। ये आपने खुद नहीं जनरेट किया, ये आपको दिया गया है पावर कि चलिए भाई आप मैनेजर हैं या लीडर हैं तो आपको ये पावर दिया गया है, आप ये डिसीजन ले सकते हैं अपने अंडर पे, तो उसको क्या बोलते हैं, लेजिटिमेट पावर। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, so these are the questions of MCQ of leadership, very important MCQ questions for the BBA student, from class 12 student as well, for 1 नंबर क्वेश्चन, एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए तो एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो तो बन ही रहा है, ठीक है, वीडियो और भी अपलोड होते रहेंगे आप लोग के लिए, सो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू।